Good morning, students. Today we will start the second chapter of class 10th, that is electricity. The second chapter of the class 10th is electricity. Then very first term is, what do you mean by electricity? Electricity is the form of energy which is produced by other types of energy. Electricity क्या है? It is a form of energy which is produced by other types of energy like chemical energy of cell, like mechanical energy of rotation of dynamo or coil. There are two types of electricity. First is called static electricity and it will come under the category of electrostatic. Second is called current electricity. Electrostatic is the branch of physics which study the charge at rest. ये जो पोर्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसको समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा. तो अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो आप अपलोड करा आपने तो सब्सक्राइब माय चैनल, तो पहले आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट वीडियो देखो, तभी आगे अच्छा समझ में आएगा. इस वीडियो में आप पढ़ोगे what do you mean by static electricity, what is the cause of static electricity, and what is the quantization of charge. Q is equal to ND. And numericals and questions based on quantization of charge. Quantization of charge. तो ये आपको फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप सेकंड वीडियो पे आना. जो चैप्टर है हमारा, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज रिलेटेड टू चार्ज इन मोशन. इस पर्टिकुलर पोर्शन में चार्ज जो है वो रेस्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, यहाँ चार्ज होंगे मोशन में. तो वेरी फर्स्ट टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड करंट. व्हाट डू यू मीन बाय करंट? What is current? Current means rate of flow of charge. Rate of flow of charge through any section of conductor. It means, suppose this is any conductor and this is any area of cross section. This is the any area cross section of conductor. If Q is the charge crossing this section of conductor in time t, then I is equal to Q by T. तो rate of flow of charge, जहाँ पे rate word होता है अंडरस्टूड है, अपॉन टाइम है वो. तो rate of flow of charge through any section of conductor, मतलब चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट. तो करंट का सिंबल है आई. आई इज द सिंबल ऑफ करंट एंड करंट इज द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू एनी सेक्शन ऑफ कंडक्टर. तो करंट का मतलब है चार्ज अपॉन टाइम, charge flowing per unit time through any section of conductor is called current. And this is a formula for current. I is equal to Q by T, where Q is charge. Q क्या चीज है? Charge, and T is the time. Now is the unit of current. Unit of current. If Q is 1 coulomb, the unit of charge is 1 coulomb and time is taken 1 second.
If charge is 1 coulomb, time is 1 second, then I will become Q by T, 1 coulomb per second, that is called 1 ampere. Ampere is the unit of current. So how can you define 1 ampere? Current is said to be 1 ampere if charge of 1 coulomb is crossing any section of conductor in 1 second. मतलब अगर 1 coulomb चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है तो करंट को बोलेंगे हम 1 एम्पियर. लिसन, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर if charge of 1 coulomb is crossing any section of conductor in 1 second. तो यहां से I की वैल्यू आ जाएगी Q बाई T. तो इसी पे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, सिंपल से न्यूमेरिकल बनते हैं आपकी क्लास में. I इज इक्वल टू Q बाई T एंड Q इज इक्वल टू I इंटू T. लिसन, I इज इक्वल टू Q बाई T and Q is equal to I into T. The question is, a conductor carries a current of 0.2 ampere. A conductor carries a current of 0.2 ampere. See? Find the amount of charge that will pass through the cross section of the conductor in 30 seconds. Find the charge flowing through section of conductor in 30 seconds. तो मुझे निकालना है चार्ज. देन Q इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी. करंट 0.2 टाइम 30, 2 by 10 into 30, आंसर इज 6 coulomb. The charge will be 6 coulomb. Next part of the question is, how many electrons will flow in this time interval? How many electrons will flow in this time interval if charge of electron is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb? तो सिंपल सा मतलब है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 6 coulomb चार्ज. तो Q इज इक्वल टू होता है NE फ्रॉम द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. इसको समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का वीडियो देखना पड़ेगा. तो Q इज इक्वल टू NE एंड N इज इक्वल टू Q अपॉन E. द वैल्यू ऑफ Q इज 6, वैल्यू ऑफ E इज 1.6 10 पावर माइनस 19. देन आंसर विल बी 3.75 into 10 power 19. The number of electrons will be 3.75 into 10 power 19. तो इसमें दोनों फार्मूला लग गए. करंट I इज इक्वल टू Q बाई टी और सेकेंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्या नाम है इसका? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइज का मतलब होता है फिक्स्ड. चार्ज फिक्स है and that is equal to Q is equal to NE. Now next numerical is a current of 0.5 ampere. Current of 0.5 ampere is drawn by a filament of electric bulb for 10 minutes. Time is 10 minutes. जो टाइम है दैट शुड बी इन सेकेंड. 10 into 60, 600 seconds. Then find the current, charge flowing through the electric circuit. तो मुझे निकालना है फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट. Q इज इक्वल टू I इंटू टी. 0.5 into 600. Then answer is 300 coulomb. Then charge flowing will be 300 coulomb. तो ऐसे मैं और 3-4 क्वेश्चंस देता हूँ आपको करने के लिए. देन ट्राई योर सेल्फ. तो फॉर्मूला जो यूज होगा दैट इज करंट इज इक्वल टू Q बाई टी एंड Q इज इक्वल टू NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज.
तो इन पे बेस्ड क्वेश्चंस सिंपल से हैं जो आपने अपने आप करने हैं. नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ करंट. डायरेक्शन ऑफ करंट. Suppose this is the conductor and this is the positive end of the conductor and this is the negative end of the conductor. Electron present in conductor will move towards positive end and positive charge will move towards negative side. Now we have two directions of current. Two directions are given, one for positive charge and other for negative charge. Then what is the direction of conventional current? I am saying conventional current. Conventional word बना है परंपरा से. जो परंपरा है करंट की डायरेक्शन की वो क्या है? तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग. डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. Suppose positive charge is moving in right hand side, then this is the direction of current. तो ये जो कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन होगी जो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज की, इन विच पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग. सपोज इलेक्ट्रॉन इज मूविंग राइट हैंड साइड, सपोज फॉर एग्जांपल, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट. इलेक्ट्रॉन करंट. Suppose electron is moving right hand side and this is the direction of electron current, but direction of conventional current is opposite to the electron current. ये जो I है this is the conventional current. Conventional current is the current opposite to electron motion, or you can say direction of conventional current is the direction in which positive charge is moving. So this is the direction of conventional current. तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो होगी पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड. तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज गिवन बाय फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर टू नेगेटिव एंड ऑफ कंडक्टर. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ करंट. टाइप्स ऑफ करंट. First is steady current. Steady current or this is called constant current. Steady current name से clear है, the current whose magnitude does not change with time. Suppose this is the current along y-axis, time along x-axis, and the current will not change with time. The current whose magnitude does not change with time is called steady current. Steady current का मतलब current whose magnitude does not change with time is called steady current. Example of steady current is DC. DC means direct current. जो DC है it is the example of steady current. अब आता है what is the source of DC. हमें डे लाइफ में DC मिलते कहाँ से है? सेल और बैटरी is the source of DC. This is the symbol for cell. ये जो big large terminal है that represents the positive end. Small terminal gives the negative end. तो this is called cell. ये जो बड़ी हुई लाइन है पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल लाइन रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव को. तो जो हम सेल यूज करते हैं घर में दैट इज द सोर्स ऑफ डीसी. बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी. बैटरी में क्या होगा? नेगेटिव ऑफ फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ सेकेंड, नेगेटिव ऑफ सेकेंड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ थर्ड एंड सो ऑन.
तो combination of cell, this is called battery, positive end, and this will be negative end. Cell or battery is the source of DC, direct current. Next term we are using, that is called AC. AC means alternating current. AC, alternating current. अल्टरनेटिंग करंट का जो एग्जांपल है, जो हाउस होल्ड सर्किट है, हमारे घर में जो करंट आता है वो एसी होता है. अल्टरनेटिंग करंट इज द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली. हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली, जो वैल्यू है करंट की वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, और जो डायरेक्शन है करंट की वो चेंज हो रही है आफ्टर ए डेफिनेट टाइम, एंड सच टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड एसी. अल्टरनेटिंग करंट इज द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली and direction changes periodically. Periodically direction change होनी चाहिए, तो that current is called AC. तो AC और DC के बारे में जो डिटेल में we will discuss in next chapter, that is called magnetism, how DC is produced, AC is produced using generators, वो next chapter में आएगा. अब इसलिए मैंने आपको नाम बताया कि DC is the direct current and it is produced by cell or battery. AC is the alternating current, it is produced by AC generators. Next is scalar and vector quantities. ये थोड़ा अलग से क्वेश्चन है. What do you mean by scalar quantities? Scalar quantity. Scalar quantities are the quantities which are having magnitude only. जिन क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, अमाउंट हो, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज. हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली. फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस. डिस्टेंस, टाइम, मास, दीज आर द स्केलर क्वांटिटीज हैविंग नो डायरेक्शन, जिसमें कोई डायरेक्शन का रोल नहीं है. नेक्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. जिन क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज. फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज द, दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट. डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. तो डिस्प्लेसमेंट हैज डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. तो सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज. जो क्वांटिटीज मोस्टली आप लोग पढ़ते हो वो है स्केलर क्वांटिटीज. जो आपने रूल्स ऑफ एडिशन पढ़े हैं वो स्केलर के लिए पढ़े हैं. 2 + 3 5, 7 + 5 12. These are the rules for scalar quantities. For adding vector quantities, rules वो different हैं, वो आप नेक्स्ट क्लास 11th में पढ़ोगे. लेकिन जो रूल्स आपने एडिशन के लिए पढ़े हैं आपने, वो स्केलर पे एप्लीकेबल है. These rules are not applicable for vector quantities. उनके रूल्स डिफरेंट हैं, वो जब नेक्स्ट ईयर 11th में आओगे तब हम डिस्कस करेंगे. अभी जो क्वेश्चन मेरा वो है, दैट इज current has a direction, yet
इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो क्वेश्चन है करंट इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिस्कस करूं तो इसके पास डायरेक्शन भी है, फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड। तो करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, बट करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इसका आंसर फिलहाल आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज एडिशन ऑफ करंट ओबेज द स्केलर लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन ऑफ करंट obeys the scalar law of addition। अगर मैं करंट को ऐड करूंगा तो स्केलर लॉ के अकॉर्डिंग ऐड होगा, इट विल नॉट ऐड अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो हेंस करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत 11th का काफ़ी कुछ पढ़ाना पड़ेगा, तो फिलहाल आप ये याद रखो, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज एडिशन ऑफ करंट ओबे द स्केलर लॉ ऑफ एडिशन। और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें इन दैट लेक्चर वी विल डिस्कस व्हाट इज पोटेंशियल, व्हाट इज ओम्स लॉ, व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। थैंक यू।